so many types of ropes. Plastic ropes, plastic, jute, fiber. Fiber is associated in all the ropes, whether it is plastic, jute, soot. One more is there in Panchmadi or any state training center, that is the steel ropes. Whenever making the monkey trees, it is basically used for the load. This is also called steel ropes, fiber, made of fiber ropes, jute ropes, plastic ropes. Why plastic ropes are not used in the case of piling? It is very slippery, so its uses can be minimized up to the minimum level at the extreme level, so that plastic ropes may not be used, preferably in the pioneering. We generally use jute ropes. One more, it is also called soot in Hindi. It is the base rope used in pioneering. It is the color is brown. On the working of ropes. In our scouting academy, the basic thing is pioneering, making the rods, and so many rods associated with pioneering. So what will be the level of working? Means there is a breakdown point. Breakdown point means जहाँ पर रस्सी क्या होगी, टूट जाएगी. तो बनाते समय ही इसका ख्याल हम रखते हैं, चुनते समय ही इसका हम ख्याल रखते हैं कि ये अपने ब्रेकडाउन पॉइंट को पार न करें. इसको साइंटिफिक टर्म में हम लोग करते हैं SWL. S means safe, W means working. So this was just the basic things you should know about the rope. Now, what are the process of making the ropes? What are its types? And what is the difference between rope? The second one is cord, and the third one is string. What is the difference between rope, cord and string? We are going to discuss about it. So can anyone tell what is rope? Up to which level of physical quantity we can say that it is rope, it is cord, it is string or thread? Thickness. Very good question. Rope is basically defined on the basis of its thickness. Then what should be thickness? इसका thickness क्या होना चाहिए कि जो हम उसको रस्सी बुलाएं? क्या ये रस्सी है? बुलाते तो हम इसको क्या है? What we name it is a rope. Is it rope? So the technical process is involved in making of rope. Gauge. See, if this is the rope, then we have a circular part. In the circular part, we have its radius, then diameter. Diameter कहने का मतलब रस्सी की जो मोटाई होगी, उसकी जो गोलाई होगी, तो इस किनारे से लेके उस किनारे यानी सर्किल का डायमीटर जो होगा, वही डिफाइन करेगा कि ये रोप है या रोप नहीं है. क्या इसका कोई क्रिटिकल वैल्यू है? तो हाँ, इसका एक क्रिटिकल वैल्यू है. इसको अगर हम लोग पूरे डिस्टेंस को देखें, डिसाइड बाय ए पैरामीटर d, then d is the what is the d? d is बताइए diameter of the rope. If diameter is greater than or equal to 1, क्या लिखा मैंने? 1 inch. Then it will be definitely we will call it as rope. Then you will debate whether what is the thickness, what will be the thickness of cord and what will be the thickness of the string or thread. बताइए.
having diameter more than or equal to 1 inch is called rope. अगर diameter 1 इंच से ज्यादा है या बराबर है तब उसको रोप कहेंगे, नहीं तो वो सारी की सारी जो रस्सियां हैं जो नॉर्मल नाम से हम लोग बुलाते हैं दैट इज नॉट रोप, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्ड, इवन स्ट्रिंग और थ्रेड. So what is the parameter which is going to be changed in the case of the thickness of the rope? In rope, the thickness is much more higher than in the case of cord. What will happen? Thickness will be down, and in the case of string and thread, it is much more down. Clear है? जब हम लोग बात करेंगे रोप की, तो रोप का थिकनेस कितना बताया? डायमीटर 1 इंच, कम से कम 1 इंच या 1 इंच से ज्यादा. हम लोग जब फाइनलिंग के लिए लेते हैं तो उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 3 इंच. 3 इंच से कम अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका SWL जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेगा और वो टूट भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन दैट. तो 3 इंच की रस्सी फाइनली में यूज करते हैं बेसिकली मॉन्की ब्रीड्स या जो भी होगा उसको बनाने के लिए जिस पर लोड बहुत ज्यादा हो. लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? रोप. तो रोप 1 इंच या उससे ज्यादा. कॉर्ड की जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 इंच से कम. और स्ट्रिंग या थ्रेड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? थ्रेड मैंने इसलिए लिख लिया कि बाद में कोई पूछ भी देता है कि सब धागा होता है उसका कितना होगा, तो क्या चीज होगा? पॉकेट माप भी नहीं पाएंगे हम लोग कितना है, माइक्रोमीटर स्कूल से स्केल से नापना पड़ेगा. खैर वो बात की बात है. तो सबसे कम तो ये सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो क्या है? थिकनेस. थिकनेस 1 इंच से कम होता गया. तो अभी आप भी जब भी कोई पूछेगा कि हाउ कैन यू डिफाइन अ रोप, सो रोप इज अ रोप is defined on the basis of its thickness, where the thickness is equal to or greater than 1 inch. Okay, madam, clear? Then, what is the process? ये मिटाते हैं. Process of making a rope. इसी के आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रोप. तो जब भी आप रोप की बात करेंगे आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है, 1 लड़ी 2 लड़ी 3 लड़ी को भूखा हुआ रहता है. तो वो रोप जब बनेगा तो आखिर कैसे बना ये ध्यान लीजिए. ये सर्कल है जो अभी डायमीटर की मैंने बात की. इन द केस ऑफ थिकनेस दिस इज द सर्कल, दिस इज द डायमीटर एंड द थिकनेस डिपेंड ऑन इट्स डायमीटर. नाउ rope making. There is a formula of rope making, and this we will all discuss about. So what is SWL? The safe working load. जहाँ तक वो breaking point means the breaking point at which the rope breaks up to the level we will designate it as a formula SWL. It is equal to 2n square. ये इतना तो समझ में आएगा ना. 2n स्क्वायर मतलब 2n क्या है बताइए. मान लीजिए अभी मैंने एक रस्सी ले रखी है, इसमें n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग मान लीजिए उसमें कितने हैं? अगर 4 होंगे या 3 होगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? ये एक बार कितना हो गया? 18. एक इसका यूनिट होता है जिसको बोलते हैं CWS. ये टेक्निकल टर्म है. कैसे रहेगा? मॉडल वर्किंग कुछ रहता है ये CWS. इसी में इसको निकालते हैं. यानी यही तो बता रहे हैं. लिखिए कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम इन रोप मेकिंग. कोऑर्डिनेट का मतलब कितना उसमें कोड किया जाए ये भी डिपेंड करता है. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच यू वर टॉकिंग अबाउट. नंबर ऑफ टर्म्स इससे भी देखा अगर कम टर्न हुआ तो ये क्या होगा? टूट जाएगा. अगर जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें स्पाइरल टर्न देंगे तो
ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती होगी। लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट से अगर ज़्यादा टर्न बढ़ भी गया तो भी वो अपने आप टूटने की उसमें संभावना रखती है। अब ये 18 क्या है? अब 18 जो है इसको बनाने के प्रोसेस में, रस्सी को बनाने के प्रोसेस में कितनी लड़ियां होंगी और कितने बार उसको घुमाया जाएगा वो यहाँ से डेजिग्नेट होता है। लेकिन ये प्योरली जो कंपोजिशन है उसका, वो जो भी कंपनी रस्सी बनाती है उसके लिए डेजिग्नेट रहता है कि आप कितना इसमें सीडब्ल्यूएस डिसाइड करें। अब टाइप्स ऑफ रोप। पहला डबल लेड। फर्स्ट वन इज डबल लेड। डबल लेड मतलब दो लड़ी। सेकेंड इज कॉल्ड हाउजर, HAUSER। थर्ड वन इज सराउंड, SHROUND। और जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, डबल लेड मीन्स टू टाइप्स, यानी दो लड़ी, हाउजर 3 लड़ी और सराउंड 4 लड़ी। अगर एक 3 से ज्यादा हो गया तो ये सराउंड में आ जाएगा, ये 2 से ज्यादा हो गया तो हाउजर में हो गया। तो आपसे पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल process, on the basis of making of the physical process, how can we define the types of the rope? The types of the rope is defined in the types of the ropes are double lead, hawser and surround. हिंदी में बोले तो 2 लड़ी, 3 लड़ी और 4 लड़ी। ये ऐसा ही बनाया जाता है। और हमारा जो रोप होता है जनरली 4 लड़ी का होता है, उसको फिर हम लोग ग्राउंड से फॉर्म करके वापस लाते हैं, इसको स्प्लाइसेस बोलते हैं। और इसके बाद ये हो गया रस्सी के बारे में। कोई अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछना। और प्रोटेक्शन ऑफ रोप में आपको पता नहीं सीखे कि नहीं, बट सिखाएंगे। और मैंने यही से सीखा है कि इसमें जो प्रोसेस होता है उसको कैसे स्प्लाइसेस बनाए जाए। इसमें 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द रोप। वन इज कॉल्ड whipping, one is called whipping and another is called splices. ये क्या है भाई? whipping क्या है, splices क्या है, कोई बता सकता है? What is whipping? जी गांठ नहीं है। स्प्लाइसेस को हिंदी में बोलते हैं सांठ। गांठ नहीं बोलते हैं, सांठ गांठ नहीं है। तो गांठ हो गया जो पड़ गया, सांठ है। गांठ में क्या हो गया कि पूरा एक गांठ लगा दिया। सांठ में क्या है आप देखिएगा, थोड़ा सा पता चलेगा सांठ क्या होता है। हाँ वही सांठ गांठ। तो स्प्लाइसेस है सांठ, और एक और प्रोसेस है whipping। तो whipping क्या होता है, ये आगे होना चाहिए। How can you define or how can you depict about whipping of the rope? एक लूप बनाएंगे, आप लोगों को याद आ रहा होगा बेसिक का, है ना। और उसके बाद इस पर उसको सर्कुलर में लपेटना शुरू करेंगे। लपेटते 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 एंड पॉइंट तक आएंगे। और जो हमारा दूसरा सिरा है उसको उस लूप में डाल के उधर की तरफ निकाल देंगे। और नीचे एक सिरा लगा हुआ था ना पहला वाला, उसको क्या करेंगे, खींच लेंगे। इससे क्या हो गया, वो सर्कुलर उसका बना रह गया और उसके दोनों सिरे नीचे की तरफ आगे। ये प्रोसेस होता है whipping। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास धागा नहीं है, तो क्या करें? अगर थ्रेड था तब तो whipping किया, अगर थ्रेड नहीं है तो कैसे काम करेंगे? किसी पार्ट को लेकर क्या बात है, ये हुई बात। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्प्लाइसेस, साठ। जहां whipping फेल हो गया वहां से आगे कुछ नहीं है आपके पास धागा, तो वहां पे हम लोग आ गए स्प्लाइसेस। अभी कितने तरह का होता है स्प्लाइसेस? जनरली हम लोग को जो पढ़ना है उसमें ये 3 तरह का होता है। और स्प्लाइसेस, आई स्प्लाइसेस, दूसरा
स्प्लाइसेज है, कौन सा शॉर्ट स्प्लाइसेज है, कौन सा बैक स्प्लाइसेज है। तो याद होगा जिस दिन हमारा झंडे की रस्सी हम लोग लगा रहे थे, उसमें रस्सी थोड़ी अगर छोटी हो जाए तो आप दो रस्सियों को कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए दो रस्सियां हैं, दोनों के सिरे खुले हो गए हैं, वीविंग के लाइक हमारे पास थ्रेड नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सिरा कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक खोल लेंगे। खोलने के बाद इनको एक दूसरे के सहारे, जो गूंथना बोलते हैं, इसको एक दूसरे के ऊपर गूंथना शुरू करेंगे। और उसका भी एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं, एक नॉट होता है, उसको बोलते हैं crown knot as it is of its name, it seems as the shape of crown. तो जो शॉर्ट स्प्लाइसेस होंगे वो रस्सी को अगर सीधे डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में अगर जोड़ना है तो उसको शॉर्ट स्प्लाइसेस कहेंगे। दूसरा है आई स्प्लाइसेस। आई का मतलब आप एक लूप बना लीजिए, एक लूप हो गया ऐसा हो गया हाथ की तरफ, तो इसको बोलेंगे आईलेट और आई स्प्लाइसेस। इसमें क्या करेंगे कि जो सिरा खुला हुआ है यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ के बाद के सिरों में इसको क्राउन नॉट की तरह एक दूसरे में लगाना शुरू करेंगे, लगाते जाएंगे। ये भी देख लेंगे कि वो क्राउन की तरह जा रहा है कि नहीं। ये चार है, इस राउंड वाली रस्सी में आ गया। साधारण शब्दों में बोले तो ये गूंथने का काम है, आप इसको गूंथ के नीचे की तरफ लाएंगे। अब इसमें कोई डाउट है कि ये मजबूत होगा या नहीं होगा? आप पूछ सकते हैं ना कि सर आपने इसी के पार्ट को इसी में डाल के स्प्लाइसेस, आई स्प्लाइसेस बना दिया, तो ये कितना मजबूत होगा? अगर मजबूत होगा तो क्यों होगा, कमजोर होगा तो क्यों, ये आप बताइए। उसको पूछ रहे हैं तो वो एक दूसरे में इंटरलॉक होते जा रहे हैं। इंटरलॉक हो गया। और बताइए लोड के केस में बताइए, अगर इस पर लोड देंगे तो इसको तो खुल जाना चाहिए। नीचे की तरफ की इस पर जो लोड दे रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसे इस पे लोड करें, ऐसा स्प्लाइसेस करें, तो इस केस में क्या ऐसे भी अगर लोड दे रहे हैं तो इस ऐसे खुलने का चांसेस रहेगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट। वहां पे क्या रस्सी टूट भी जाएगी, वहां तक भी वो खुल सकता है। लेकिन इस रस्सी में और लोड में या प्रेशर में ऐसी क्या खासियत है जिससे ये बहुत हद तक काम चल जाएगा, बताइए। बहुत सारे नॉट में ये होता है। नॉट का बेसिक ही इसी पर, जब भी लोड पड़ेगा तो जो ये स्पाइरेटेड है और इसके अंदर जो ये गूंथा हुआ है उस पर भी लोड पड़ेगा, और जब लोड पड़ेगा तो वो उसको पकड़ ले, तो इसमें मजबूती आएगी। ब्रेकिंग तो सब चीज का हो सकता है, लेकिन इसकी मजबूती कब आएगी? जब इस पर लोड आएगा। जब इस पर लोड नहीं है, ये सिंपल गूंथा हुआ चीज है, ब्रेडेड सिस्टम है। इस ब्रेडेड सिस्टम में जब लोड पड़ेगा तभी इसमें मजबूती आएगी और अपने क्रिटिकल पॉइंट में बिलो तक यह मजबूत स्ट्रॉन्ग। ये हो गया आई और बैक करने का क्या हुआ? अब देखिए अभी इतना ही है सर। बैक स्प्लाइसिंग का मतलब रस्सी का कोई भी सिरा, उन सिरों में आपको एक को ऐसे लेना पड़ेगा, इसमें एक दूसरे में आप क्राउन की तरह इसको लगाएंगे। प्रैक्टिकल मधु मैडम बताएंगे विशेषतर, मैंने यही से सीखा है। ये हो क्या जाएगा, चारों तरफ एक क्राउन की तरह शेप ले लेगा। यानी अगर इसमें 3 धागे रहते तो द एंगल बिटवीन द 3 थ्रेड्स विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्राउन नॉट की खासियत। और अभी 4 है तो 90 डिग्री के एंगल पे ये चारों एक तरफ क्लियर है। 90 दोनों के बीच में 90, यानी ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। जो डायरेक्शन अभी आप पढ़ रहे थे ये हो गया। कौन सा नॉट ऊपर के बाद आ गया? क्राउन नॉट। और इसी क्राउन नॉट का यूज इन तीनों स्प्लाइसेस में होता है।
ये था बैक स्लाइसेस, रस्सी के सिरों को उसी रस्सी में क्राउन नॉट बनाते हुए नीचे की तरफ फर्दर इसको खोल के और उसी तरह घूम देना, ये होता है बैक स्लाइसेस। क्लियर है? वही बताया, क्राउन नॉट में क्या है कि आप 4-3 जोड़ी ले लीजिए और एक दो को रस्सी को इधर की तरफ, अभी जो मैंने बनाया एक को थोड़ा सा लूप बना के और एक दूसरे और तीसरे को एक दूसरे के लूप में पिरोते हुए खींच देना, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा क्राउन का 120 डिग्री एंगल पे, जिसमें तीनों ऐसे अगर तीन तरफ 3 रस्सियां होंगी तो 3 और अगर 4 रस्सियां होंगी तो वो 90 डिग्री के एंगल पे निकला हुआ है। 4 रस्सियां इसके पास 4 एक